is treated with ammonium chloride is treated with sodium carbonate, what it produces? It produces NaCl and ammonia. So these are the major components which are produced when ammonium chloride react with so alkali metal carbonates, that is sodium carbonate. थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? यस मैम। क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, कैसी अपीयरेंस है? व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं। टेस्ट कैसा होता है इसका? अमोनियम क्लोराइड का टेस्ट कैसा है बेटा? Salty taste. Hygroscopic in nature, it is strongly exothermic, ठीक है, it sublimates without melting. अमोनियम क्लोराइड को जब आप ट्रीट करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, it releases ammonia gas. Ammonium chloride react with alkali metal carbonates to produces ammonia and alkali metal chlorides. Now next is assay, ठीक है। तो ऐसे जो होता है अमोनियम क्लोराइड का, दैट इज बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट एसिड बेस रिएक्शन। इनडायरेक्ट एसिड बेस रिएक्शन, मुझे लगता है आप लोगों ने जब एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ी होंगी, टाइट्रेशंस पढ़ी होंगी, वहां पे आपने बेटा ये मेथड भी पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड? हमारे पास तीन तरीके के मेथड होते हैं ना, एक होती है डायरेक्ट टाइट्रेशन, एक होती है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, एक होती है डबल टाइट्रेशन। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होती है बेटा, कौन बताएगा मुझे? पढ़ी है आपने? इनडायरेक्ट याद नहीं आ रहा है बेटा डायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होती है? वो जो एसिड बेस होता है, एक एनालाइट होता है, एक टाइट्रेंट होता है अपने पास। The simple reaction when an acid is treated with base in presence of an indicator, that reaction is known as direct titration, ठीक है। So what is indirect titration? Indirect titration में इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, आपके पास रिएक्टेंट A है, ठीक है, रिएक्टेंट A है जिसकी अननोन कंसंट्रेशन है आपके पास, यू डू नॉट नो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A. It is treated with reactant B which is of known concentration, ठीक है, ये बात क्लियर है। रिएक्टेंट A को आप ट्रीट करा रहे हो रिएक्टेंट B के साथ जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, then the direct titration will take place. The excess of reactant A is back titrated to get the amount of reactant A or to determine the amount of unknown concentration of reactant A. So basically दो steps हो रहे हैं यहाँ पे। देखो कि indirect acid base titration कैसे हो रही है assay of ammonium chloride में। आपके पास aqueous solution of test substance जो है, test substance क्या होगा यहाँ पे हमारा? ammonium chloride. Aqueous solution of test substance is treated with previously neutralized formaldehyde solution, ठीक है। See the reaction over here, ammonium chloride which is your test sample is treated with, you are going to make the aqueous solution, you are treating it water, it result in the formation of ammonium hydroxide and HCl. Then what happens, this results in the liberation of HCl. आपका जितना बेटा HCl liberate हो रहा है reaction में, that HCl is equivalent to ammonium chloride which is obtained by doing the direct titration, जिसमें आप HCl को titrate कर रहे हो standard ammonium hydroxide के साथ using phenolphthalein as a indicator by showing pink color at the end point. तो जितना आपका HCl liberate होगा, that will tell you the amount of ammonium chloride present in the test sample. So this is called indirect titration. Clear है ये titration method कैसे कर रहे हो आप? Initially आप क्या कर रहे हो, aqueous solution बना रहे हो test substance का, जिसको आपने न्यूट्रलाइज किया बेटा फॉर्मलडेहाइड के साथ, ठीक है। दिस फॉर्मलडेहाइड, इट रिजल्ट्स, when this neutralization is done, it results in the liberation of HCl.
जो HCl लिबरेट हो रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू द अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो एक्सेस ऑफ HCl हमारे पास लिबरेट हुआ है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूजिंग फिनोल्फथलीन एज अ इंडिकेटर टू फाइंड आउट द amount of ammonium chloride. So this is how we do the assay of ammonium chloride. This method is clear? Yes, ma'am. ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नाउ प्रोसीजर क्या है बेटा, कैसे आप इसको परफॉर्म करोगे, कैसे ऐसे परफॉर्म करोगे लैब में? यू विल एक्यूरेटली वे 0.1 ग्राम ऑफ टेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। टू दिस यू विल एड 20 ml ऑफ वाटर, ठीक है। जो भी आपका टेस्ट सब्सटेंस है, ऑब्वियसली टेस्ट सब्सटेंस यहाँ पे हमारा अमोनियम क्लोराइड है, उसमें आपने 20 ml ऑफ वाटर ऐड किया, उसको डिसॉल्व किया टू द एक्वस सोल्यूशन। जो आपका एक्वस सोल्यूशन फॉर्म हो गया है उसमें आपने ऐड करना है प्रीवियसली न्यूट्रलाइज्ड फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन with phenolphthalein solution and then add 20 ml of water. Mix well and after 2 minutes the solution is titrated with standard 0.1 molar NaOH, adding indicator phenolphthalein in the solution. So this is how you will do this assay in the lab. Very simple procedure. You will be taking test substance. To this test substance you will be adding water and you will dissolve it completely. जो aqueous solution form हुआ है जब test substance और water को आपने mix किया है उसमें आपने add करना है 5 ml formaldehyde solution जिसमें phenolphthalein solution भी present होगा। उसके बाद उसका वॉल्यूम मेकअप करना है 20 ml तक। देन यू विल मिक्स इट एंड कीप इट फॉर 2 minutes। आफ्टर 2 minutes आपने उसको टाइट्रेट करना है 0.1 मोलर NaOH के साथ यूजिंग फिनोल्फथलीन एज अ इंडिकेटर। तो जो कलर चेंज आपके पास आएगा एंड पॉइंट पे वो क्या कलर आएगा? जब आप HCl और NaOH का टाइट्रेशन करते हो क्या कलर आता है बेटा? यूजिंग फिनोल्फथलीन एज अ इंडिकेटर क्या कलर आता है एंड पॉइंट पे? मैम रेड पिंक रेड पिंक पिंक कलर आता है। पिंक कलर। और जब आपका पिंक कलर आ जाता है तो that your acid is completely neutralized with the base. So that is the equivalence point or the end point of your titration. Now what kind of titration it is when you are titrating HCl with NaOH? किस तरीके की टाइट्रेशन है बेटा ये? डायरेक्ट। It is direct titration. Acid base titration. Over here, as we are talking about ammonium chloride, it is indirect titration because जो आपका excess of HCl liberate हुआ है उसको आप back titrate कर रहे हो किसके साथ? Ammonium hydroxide के साथ using phenolphthalein as a indicator. So HCl is an example of strong acid or base. Strong acid, weak acid. Strong acid. And what about NaOH? Strong base. Strong. So this is a titration between a strong acid and strong base. So each ml of 0.1 normal NaOH is equivalent to 0.005349 gram of ammonium chloride. So this is the factor of ammonium chloride which is given in IP, that is 0.1 normal NaOH कितना equivalent है? It is equivalent to 0.005349 gram of ammonium chloride. So when we do the calculation, when we calculate the percentage purity of ammonium chloride, वहां पे हमें factor की value भी put करनी होती है, ठीक है? So 0.1 normal NaOH कितना equivalent है? 0.005349 grams. Now what are the uses of ammonium chloride? Ammonium chloride जो है, it is used as a systemic acidifying. It is used as a expectorant. Expectorant का मतलब क्या होता है बेटा? Who will tell me? क्या होते हैं expectorant? मैम कफ
Drugs which are used for the treatment of cough. Okay. Diuretic agent, क्या होते हैं diuretic agent? Which increases the urine formation. Agents which are used to expel out urine from the body. It is also used in severe alkalosis and some urinary tract disorders. Uses clear है ammonium chloride के. Ammonium chloride used होता है as a systemic acidifying. It is used as an expectorant. It is used as a diuretic agent. It is also used in severe alkalosis and in urinary tract disorders. और हाँ जी मैम एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है वापस बताना. बेटा एक्सपेक्टोरेंट्स वो ड्रग होती है विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ. ठीक है. अमोनियम क्लोराइड जो है आप नोटिस करोगे जितनी भी आपकी कफ प्रिपरेशंस होती है ना उनमें अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है. मोस्टली इट इज प्रेजेंट. सो इसका क्या है प्रॉपर्टी? इट विल प्रोड्यूसेस यू नो you can say it will helps to expel out the mucus from your this cavity. So over here it is also used as a expectorant. I think all the things about ammonium chloride is clear. Properties clear है सबको? Yes ma'am. Preparation clear है? हम इसका सेकंड वाला बताना प्लीज मेथड क्योंकि नेटवर्क इशू था. बेटा सेकंड वाले मेथड में कुछ नहीं है. सिंपली इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग HCl विद अमोनिया सॉल्यूशन. सो इट इज द अनदर मेथड कि आप अमोनियम क्लोराइड जो है वो HCl और अमोनिया सॉल्यूशन का जब न्यूट्रलाइजेशन मेथड करते हो वहां पे भी आपके पास अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है. इसमें क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपके पास सोल्यूशन मिक्सचर की फॉर्म में आता है. उसको जब आप इवेपोरेट करते हो ड्राइनेस इट विल प्रोड्यूसेस अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. इसको इवेपोरेट करना है टू द ड्राइनेस लेवल तो आपके पास जो सॉलिड कंपाउंड रह जाएगा दैट इज योर अमोनियम क्लोराइड. और प्यूरिफिकेशन का मेथड जो है वो बेसिकली आप रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो या सब्लिमेशन प्रोसेस करते हो जिससे आप प्यूरिफाई करते हो अमोनियम क्लोराइड को लैब में. I think this is clear. Everything is clear for ammonium chloride uses, assay, properties. Excuse me मैम. हाँ Yes, जी. sir. मैम एक बार ऐसे रिपीट कर दो. बेटा इसका जो essay है ना that is done through the indirect titration method, acid based titration method. Simply कुछ नहीं है. मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ. एक मिनट. मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes ma'am. Yes हाँ मैम. जी. पहले प्रोसीजर देखो कि आपने कैसे इसको परफॉर्म करना है. आपने टेस्ट सैंपल लेना है. ठीक है. टेस्ट सैंपल को आपने वाटर में डिसॉल्व करना है टू मेक द एक्वस सोल्यूशन. ठीक है. जो एक्वस सोल्यूशन आपका बना है उसमें आपने ऐड करना है फॉर्मलडेहाइड with phenolphthalein solution and then you will add water. Mix it well, keep it for 2 minutes and titrate with NaOH. So basically इसमें क्या है आप देखो आपके पास aqueous solution है टेस्ट सब्सटेंस का. उसको आपने ट्रीट किया है किसके साथ? previously neutralized formaldehyde solution के साथ. Over here see the reaction. You have ammonium chloride, you have added water. It result in the formation of ammonium hydroxide plus HCl. So this HCl which is liberated in this reaction is equivalent to the amount of ammonium chloride which is present. So ये जो amount of ammonium chloride आपने क्या करना है? Simply what you will do the direct titration of this excess of HCl with sodium hydroxide which is your standard solution. ठीक है. जिसकी कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है. उससे you will calculate the amount of ammonium chloride using phenolphthalein as a indicator. और एंड पॉइंट पे आपके पास कलर चेंज किया आएगा पिंक कलर जिससे आपको पता लग जाएगा कि दैट योर एक्सेस ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो बेसिकली आपके पास दो टाइट्रेशंस हो रही है. इनडायरेक्ट में क्या है? आपके पास पहले रिएक्टेंट ए है. ठीक है. रिएक्टेंट ए को आपने जिसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है आपने उसको टाइट्रेट किया है रिएक्टेंट बी के साथ
जिसकी कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। तो रिएक्टेंट ए जो है वो दैट इज यूज्ड इन एक्सेस, तो रिएक्टेंट बी के थ्रू हम क्या करेंगे, वो एक्सेस कंसंट्रेशन जो यूज हुई है उसको डिटरमाइन कर लेंगे डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड से, जिसमें हम उसको टाइट्रेट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूजिंग फिनोफ्थलीन एज अ इंडिकेटर। नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम मैम। हाँ जी, मैम हाँ जी बोलो बेटा। मैम हमें ऐसे में मैम क्वांटिटी भी लिखने हैं सब्सटेंस, मतलब जैसे 20 ml वाटर में मतलब कितना क्वांटिटी डिसॉल्व किया हाँ वो जी भी बेटा, लिखने होंगे। आपने ऐसे में ये क्वांटिटी स्पेसिफाई करनी है कि आपने कितने मोलर सोल्यूशन लिया है, आपने कितने टाइम तक उसे रखा है, क्या क्वांटिटीज है, वो सारी चीजें आपको ऐसे में स्पेसिफाई करनी होती है। मेनली जो प्रोसीजर है ऐसे का, दैट इज यूजुअली आस्क्ड कि आपने कितना क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सब्सटेंस लिया था, उसको कितने ml में डिसॉल्व किया, उसके बाद उसमें कौन सा इंडिकेटर ऐड किया, उसको किससे टाइट्रेट किया, दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट इन द एसे। ठीक है, और वैसे भी हमारे सिलेबस में सिर्फ कुछ ही ड्रग्स ऐसे हैं जिनके ऐसे उन्होंने पूछे हैं। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि जितने भी ड्रग्स हैं जिनके ऐसे आपसे पूछे गए हैं उन सबको आप एक जगह लिख सकते हो, उनका प्रोसीजर लिख के आप डे बाय डे रिवाइज कर सकते हो कि अमोनियम क्लोराइड में मैं किसके साथ टाइट्रेशन कर रही हूँ, और दूसरे कंपाउंड जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड से हम टाइप वो करते हैं ऐसे। तो ये आप यहाँ पे हम किस मेथड से कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में वो सिर्फ आपसे मेथड ही पूछ लेते हैं, दैट राइट द मेथड और प्रिंसिपल बिहाइंड द अमोनियम क्लोराइड essay. So you should know that it is done through the indirect titration method. जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट का हमको पता है, it is done through the complexometric titration. So you should know the name of method also. ठीक है, and quantities आपको specify करनी है इसमें। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। So next Yes, is ma'am. beta antacids. Antacids क्या होते हैं? I think you all know now. क्या होते हैं antacids? कब यूज करते हैं हम antacids? ड्यू टू एक्सेसिव When the एसिड excess Neutralize HCl is करने present in the acid है। body. जब हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, इन दैट केस व्हाट वी रिक्वायर एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज दैट एक्सेस ऑफ एसिड फॉर्मेशन। बिकॉज आपको पता है अगर आपकी बॉडी में हाइपर क्लोरहाइड्रिया होगा, हाइपर एसिडिटी होगी, तो आपकी बॉडी में आपको पेन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, आपको अल्सरेशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। सो एंटासिड्स बेसिकली 2 टर्म्स है हमारे पास, एंटी मींस अगेंस्ट, एसिडस मींस एसिड। सो ये क्या होते हैं, दे आर वीक बेसिक सब्सटेंसेस which are used to neutralize excess acid produced in the stomach of patient suffering from hyperchlorhydria, hyperacidity, which may cause pain and ulceration. आई थिंक ये पहले वाली लाइन सबको क्लियर है कि एंटासिड्स में 2 वर्ड्स होते हैं, एक का होता है एंटी विच मींस अगेंस्ट, और एसिडस मींस एसिड। सो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस ऑफ एसिड को जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, स्पेशली जब आपको हाइपर एसिडिटी होती है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है, फर्स्ट वाला? Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. these substances Yes, reduce the gastric acidity and cause the rise in pH of stomach and duodenum. So basically, antacids क्या करते हैं? They reduce the gastric acidity. वो reduce करते हैं आपकी acidity and causes a rise in pH of stomach that is above 4. So what they do, they will change your pH of your stomach. They will help to rise your pH of your stomach above 4, and they will reduce the gastric acidity. Second point is clear to everyone? Yes, मैम। ma'am. Yes, Now ma'am. they Yes, ma'am. also inhibit the release and proteolytic activity of enzyme and interfere with the digestive process.
So what they do, they also inhibit the release and proteolytic activity of enzyme and interfere with the digestive processes. So basically, they inhibit the proteolytic activity of enzyme. They inhibit or they stop the formation of, जैसे प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स हमारे पास होते हैं जो लार्जर प्रोटीन्स को ब्रेकआउट करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, ये उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू मेजर द एफिकेसी ऑफ एंटासिड्स इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी. सो अगर हमें चेक करना है किसी भी एंटा एसिड की एफिकेसी को, उसकी पोटेंसी को, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी. मीन्स वो कितना ज्यादा आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में जो एसिड है उसको किस लेवल तक न्यूट्रलाइज कर रहा है, उससे हम मेजर करते हैं कि हमारी जो एंटा एसिड है उसकी क्या एफिकेसी है. ये स्लाइड क्लियर है सबको? सारे पॉइंट्स क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. नाउ इवैल्यूएशन ऑफ एंटा एसिड एक्टिविटी. कोई भी एंटा एसिड आपके पास अवेलेबल है तो आप उसकी एफिकेसी कैसे चेक करोगे? आप कैसे चेक करोगे दैट दिस एंटा एसिड इज गुड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिड? सो इवैल्यूएशन ऑफ एंटा एसिड एक्टिविटी इज डन बाय परफॉर्मिंग एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी टेस्ट. कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा किसी भी एंटा एसिड की इवैल्यूएशन एक्टिविटी करने के लिए? बेटा, यू विल परफॉर्म एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी टेस्ट कि आपका जो एंटा एसिड है वो एसिड को किस लेवल पे न्यूट्रलाइज कर रहा है. तो इस टेस्ट में क्या होता है? इन दिस टेस्ट मेजर्ड अमाउंट ऑफ एंटा एसिड इज मिक्स्ड विद मेजर्ड अमाउंट ऑफ HCl and the pH of solution mixture is determined at different time intervals to calculate the amount of acid consumed by the antacid. I think this point is clear. Very simple test. अगर आपको किसी भी एंटासिड की एफिकेसी चेक करनी है तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? लैब में आप एक मेजर्ड अमाउंट, डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ एंटासिड लोगे, उसमें मिक्स करोगे मेजर अमाउंट ऑफ HCl एंड देन यू विल चेक द pH. जो आपने मिक्स किया है एसिड और HCl को, यू विल चेक द pH एंड यू विल कैलकुलेट कि आपका कितना एसिड कंज्यूम हो रहा है टू न्यूट्रलाइज दिस. हाउ मच एसिड इज कंज्यूम्ड बाय द एंटासिड सब्सटेंस. तो वो कहीं ना कहीं आपको बता देगा कि आपका न्यूट्रलाइजेशन किस लेवल पे आया है. दिस पॉइंट इज क्लियर? जो सोल्यूशन के pH है that will tell you how much your acid is consumed by antacid substance. This point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड, जो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी है एंटासिड की, उसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl. मींस इसके लिए जो यूनिट है जिसमें आपके पास न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी किसी भी एंटासिड की आएगी, दैट इज ऑलवेज रिपोर्टेड इन मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl. एवरी एंटासिड प्रोडक्ट must have a total neutralizing capacity of at least 5 milli equivalents of hydrochloric acid per dosage unit. So they have said that the total neutralizing capacity कितनी होनी चाहिए? It should be at least 5 milli equivalent of HCl. आपको जब न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी एक्सप्रेस करनी है किसी भी एंटासिड की, तो वो आप किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हो? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl. एंड एवरी एंटासिड प्रोडक्ट मस्ट हैव अ टोटल, कितनी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए इन टोटल? एटलीस्ट 5 मिली इक्विवेलेंट कैपेसिटी होनी चाहिए. दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड और एफिकेशियस antacid, that it should have a neutralizing capacity of at least 5 milli equivalent. This slide is clear कि आप कैसे evaluation कर रहे हो antacid activity का? Yes, ma'am.
Yes, वेरी ma'am. Yes, ma'am. सिंपल बेटा, रिपीट कर रही हूँ, कुछ नहीं आपने नोटिस करना। जब हम किसी भी एंटी एसिड की एक्टिविटी को चेक करते हैं तो उसके लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी टेस्ट। तो हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो एंटी एसिड है वो कितने लेवल तक न्यूट्रलाइज कर रहा है HCl को। तो हम क्या करते हैं, लैब में सिंपली एंटी एसिड लेते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं HCl के साथ, और फिर हम pH डिटरमाइन करते हैं सोल्यूशन की डिफरेंट टाइम लेवल्स पे टू कैलकुलेट कि हमारा कितना एसिड कंज्यूम हुआ है उस पर्टिकुलर एंटी एसिड सब्सटेंस के साथ। इसके लिए जो यूनिट है न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी के लिए, यूनिट जो हम यूज करते हैं दैट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। क्लियर है ये स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड करूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ एंटी एसिड क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंटी एसिड्स को बेसिकली 2 ग्रुप्स में हमने क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ एंटी एसिड। ठीक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ chemical nature. There is one more classification of anti-acid that is on the basis of pharmacological property. So over here if we talk about the chemical nature of antacids, हमारे पास दो टाइप्स है। एक होता है एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स, दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड। नाउ एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स में एग्जांपल्स है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। So what are the properties? कैसे होते हैं absorbable antacids? They are very soluble, they are well absorbable and causes change in systemic electrolyte level and metabolic alkalosis. So these are the properties of absorbable antacid, that they are soluble, they are very easily absorbable, they cause changes in the systemic electrolyte level and causes metabolic alkalosis. They may cause acid rebound and are inappropriate for patients with hypertension or kidney failure. सो बेसिकली क्या होता है, ये वाले जो एब्जॉर्बेबल एंटी एसिड्स होते हैं जिसके एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये वाले एंटी एसिड्स जो होते हैं दे आल्सो कॉज एसिड रीबाउंड। एसिड रीबाउंड का मींस है आपके स्टमक के अंदर ओवर एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड, और एसिड दोबारा ओवर फॉर्म में फॉर्म होना शुरू हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड acid rebound. So this is very common problem with these absorbable antacids. That is why we do not very much prefer absorbable antacids. ठीक है, and it is very inappropriate अगर आपके पास hypertension और kidney failure patients हैं जहाँ पे you have to keep a proper balance between the acid and base. Over there these absorbable antacids are not used, they are not preferred. सेकेंड जो कैटेगरी है वो है नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स। दे आर आल्सो प्रोन टू कॉज रीबाउंड इफेक्ट, मींस जब तक आप यूज कर रहे हो दे आर प्रोड्यूसिंग इट गुड इफेक्ट, बट अगेन व्हेन यू लेफ्ट आउट देन ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड टेक प्लेस इन द स्टमक। ये प्रॉपर्टीज जो है वो एंटासिड्स में बहुत कॉमन होती है। ठीक है, दे आर as the name suggests non-absorbable, they are not very soluble, they are only slightly soluble, they are not easily absorbable. ठीक है, and but one of the property of non-absorbable antacid is that they do not causes change in your systemic electrolyte level. यहाँ पे नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स इसलिए प्रेफर होते हैं क्योंकि वो आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल को नहीं चेंज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, and they are not easily absorbable and very slightly soluble. They usually contain high amount of aluminum and magnesium hydroxides. Examples है हमारे पास aluminum phosphate and aluminum hydroxide. So basically non absorbable में हमारे पास examples किस किस के आते हैं, aluminum के, hydroxide के, sorry magnesium, calcium, these all come under the नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड। एब्जॉर्बेबल में हमारे पास मेजरली सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। आई थिंक दिस स्लाइड इज क्लियर। क्लासिफिकेशन? Yes, ma'am.
This is on the Yes, basis ma'am. of chemical nature. Second जो classification है that is on the basis of pharmacological property. ठीक है, इसको हमने two parts में divide किया. एक है systemic antacid, second is non-systemic antacid. Now what are systemic antacids? These antacids are water soluble and readily absorbed in the systemic circulation and are potent neutralizers that neutralize excess of HCl in the stomach. They contain cationic group that form water soluble basic compound with bicarbonate. Example क्या है systemic antacids का? सोडियम बाइकार्बोनेट. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने इनको टू पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर एंड बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी. सिस्टमिक क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, इजिली एब्जॉर्बेबल होते हैं. यही प्रॉपर्टीज देखो आप यहाँ पे हमारे एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स की है ना. And examples are also same over here. It is example of sodium bicarbonate. Systemic में भी कौन सा example है हमारे पास? Sodium bicarbonate. So systemic antacids contain cationic group that form water soluble basic compound with bicarbonate. Second है non-systemic. Non-systemic as I told you same like non-absorbable antacids की जो property होती है, they are poorly water soluble, poorly absorbed into the systemic circulation. Systemic में हमारे पास cationic group present होता है, यहाँ पे हमारे पास anionic group present होता है, which releases their anionic group neutralizes the H plus ions in the gastric acid, which releases their cationic group and react to produce their chloride salts. एग्जाम्पल्स हमारे पास वही एग्जाम्पल्स हैं सेम यहाँ पे नॉन सिस्टमिक में जो हमने नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स में बताए थे. एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, these all belongs to non-systemic antacid. I think this classification is clear. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. तो बेसिकली मेजरली हम जो क्लासिफिकेशन एंटासिड्स की कंसिडर करते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी बेसिस पे हम ज्यादा कंसिडर करते हैं. ठीक है, अगर हमें उनकी केमिकल नेचर बताना है, केमिकल नेचर के बेसिस पे बताना है कि ये एंटासिड्स एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, तो वहां पे हमारे पास ये क्लासिफिकेशन होती है. ठीक है, रिमेनिंग पार्ट आई विल बी टेकिंग इन द another class. Okay, I think ammonium chloride is now clear to everyone. Antacid का journal evaluation classification clear है सबको? Yes, ma'am. You Yes, have ma'am. to revise it बेटा. एक बार घर पे जाके जब खुद रिवाइज करोगे then only you will be able to tell me. And tomorrow you all have to prepare once again all the examples of different category. ठीक है, Okay. मैंने आपसे सबसे पहले Okay. पीडीएफ सेंड कर देना. हाँ जी, Yes, ma'am. पीडीएफ सेंड कर देना. मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो? मैम पीडीएफ सेंड कर देना. पीडीएफ सेंड. किस ये वाले प्रेजेंटेशन का? यस मैम. ठीक है, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी. पर कल जो आपने सबसे पहले मैंने आपसे पूछना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में जो 4 कैटेगरीज है, उन चारों कैटेगरीज की जो ड्रग्स उनके अंदर आती है वो सारी ड्रग्स आपने वंस अगेन रिवाइज करनी है. सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में आती है, वहां से सिलेबस में आप लोग पढ़ लेना. ठीक है मैम, आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का पीडीएफ भेज दिए? नहीं, मैंने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का पीडीएफ अभी नहीं भेजा है. जो मैंने आपको आज पाठ कराया उसका मैं भेज दूंगी. आई थिंक जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको डाइल्यूट HCl वगैरह कराया था उसका भी पीडीएफ नहीं भेजा ना आप लोगों को. दैट आई विल Yes, शेयर. ma'am. ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी, यू विल सी. एंड प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो. अगर डे बाय डे नहीं रिवाइज करोगे देन यू विल फाइंड अ डिफिकल्टी इन द एंड. कल वाली क्लास के लिए आपने सिलेबस उठा के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे आपने पढ़ के आने हैं. ठीक है, प्लस यू विल कम बाय प्रिपेयरिंग दिस ammonium chloride. We will be discussing the properties, preparation, uses and assay of ammonium chloride. ठीक है बेटा?
Yes, ma'am. Now attend your roll call beta for attendance. Abhinav Chaudhary, माइक खराब है उसका। Abhishek, Present, ma'am. Adarsh, Aditi, Present, ma'am. Aditya, Present, ma'am. Ajay, Altaf, अल्ताफ और अजय प्रेजेंट है मैम, दोनों चैट बॉक्स में लिखते हैं। Aman, ma'am. Achal, Present, ma'am. Aniket, प्रेजेंट मैम। Ankit, प्रेजेंट मैम। Anoop Sharma. Anoop is absent. मैम आदर्श ने चैट बॉक्स में डाला, उसके प्रेजेंट लगा था। उसका देख लिया मैंने। अनुभव, Present, ma'am. अर्चित, प्रेजेंट मैम। आशीष, Present, ma'am. अश्मित, Present, ma'am. अविनाश, प्रेजेंट मैम। भव्य, Present, ma'am. भावना, प्रेजेंट मैम। दीपक, Present, ma'am. ध्रुवा, Present, ma'am. दीक्षांत, दिनेश, प्रेजेंट मैम। दिनकर, Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। फुरकान, Ma'am. Ma'am, present. ठीक है, गौरव, Present, ma'am. Present. ओके। गौरव बेटा क्लास हमेशा लीव करा करो पहले वाली, फिर सेकंड क्लास ज्वाइन करा करो, नहीं तो फिर आपको अटेंडेंस नहीं लगेगी दोनों क्लासेस की। आज आप पहले वाली क्लास में जो सेकंड क्लास थी उसमें आप पहले से इन थे। अगर ऐसा करोगे तो आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड बेटा प्रॉपर नहीं जाएगा। क्लास लेफ्ट करके दोबारा इन करा करो जिस भी सब्जेक्ट की क्लास लगाते हो। प्रेजेंट मैम। गोविंद, Present, ma'am. गुरप्रीत, Present, ma'am. हर्ष, Present, ma'am. हर्ष चौधरी, Present, ma'am. हर्ष शर्मा, Present, ma'am. हर्ष शर्मा, Present, ma'am. Roll number 36. ओके, हर्ष शर्मा। Present, ma'am. टोटल 4 हर्ष है हमारे पास, है ना? नहीं, 1 2 3 4 5 हर्ष है। हर्षित, यस मैम। मैम हर्षित, आस्था प्रेजेंट है, मेरी आईडी से लॉग किया है उसने। आस्था ने, ओके। यस मैम। हर्षप्रीत, Present, ma'am. हरसिमरन, प्रेजेंट मैम। इमरान, Present, ma'am. इंजमुल, जफर, प्रेजेंट मैम। जशनप्रीत, मैम चैट बॉक्स में लिखा हाँ होगा। जी ठीक है। जसलीन, प्रेजेंट मैम। काजल, Present, ma'am. कमलप्रीत, करणजोत, Present, ma'am. कार्तिक, Present, ma'am. कशिश, प्रेजेंट मैम। हाँ जी। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर है कल आपको क्या पढ़ के आना है? यू विल कम प्रिपेयर्ड विद अमोनियम क्लोराइड प्लस the example of drugs under gastrointestinal agent. Okay.